Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna
Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram 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 Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, 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 Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna,
Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Hare, Krishna Krishna, Ram, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, 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 Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Radha, और गोविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Krishna, Ram Ram, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Guru Sri Gaur Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे, राम राम। हरे कृष्ण गुरु प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances of Lord Sri Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। सभी भक्तों का हम स्वागत भी करना चाहते हैं आज के हमारे दूसरे सत्र में, या हमारे 3 दिवसीय जो राम कथा हो रही है उसके दूसरे सत्र में। तो कल कई भक्तों ने काफी उत्साह से कथा का श्रवण किया और आज प्रसन्नता की बात है, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के लिए, सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए भी, कि कई भक्त फर्स्ट आईडी में तो ऑलमोस्ट फुल हो गया था अभी कुछ मिनटों पहले, पुनः भक्त कुछ ज्वाइन कर रहे, लीव कर रहे, इस समय थोड़ा ये आना जाना होता है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि नाम जप को विराम देकर ध्यान पूर्वक आज की प्रभु श्री रामचंद्र की कथा का श्रवण करने तैयार रहिए। और अब ज्यादा समय न लेते हुए हम हमारे उद्धव प्रभु जी से अनुरोध करते हैं आज की राम कथा को आगे बढ़ाए। प्रभु जी, ओवर टू यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते श्री रामाय। ओम नमो भगवते श्री रामचंद्राय। ओम नमो भगवते श्री रामभद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानन्दविधायिने। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के चरणों में मेरे सादर दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी वैष्णव के चरण कमलों में वंदन करते हुए इस सेवा का आरंभ करता हूँ। कल तक की कथा में हम श्रवण कर रहे थे कि कैसे भगवान के विविध अवतार हैं, अनेक अवतार हैं, और उन अनेकों अवतारों में से राम और कृष्ण ये दो भगवान के बड़े ही महत्वपूर्ण अवतार हैं, जिन अवतारों को आप लीला अवतार भी कह सकते हैं। जिन अवतारों में प्रकट होकर, जिन रूपों में प्रकट होकर राम और कृष्ण रूप में प्रकट होकर भगवान बहुत सुंदर सुंदर अति मधुर मधुराति मधुर ऐसी अनेक लीलाओं को संपन्न करते हैं। और मूल कारण हमने देखा भगवत गीता से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उसमें भी हमने ये देखा कि भगवान साधु संतों का रक्षण करने के लिए, वो भी किसी राक्षस से नहीं, किसी प्रकार की आपदा संकट विकट उससे नहीं, तो अपनी मधुराति मधुर लीलाओं को खेल कर इस संसार में लीलाओं को करते हुए भगवान विविध लीला करते हैं, जिन लीलाओं को सुन कह कर ही भक्त लोग अपना भरण पोषण करते हैं। उससे भक्त लोग अपनी भक्ति को पुष्ट करते हैं भगवान की कथा सुनकर। इस बात को हमने देखा। तो आज हम खास करके राजा रामचंद्र किस प्रकार से राम के रूप में प्रकट हुए, राम अवतार में प्रकट हुए, मनुष्य रूप में प्रकट हुए, तो इस विशेष अवतार को लेने के लिए जो भी निमित्त बने, कारण बने, हेतु बने, उनको आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। वैसे वो चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, उसके मूल वक्ता तो भगवान शंकर ही हैं, भगवान शिव जी हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी की कथा बड़ी प्रचलित है, हमने सुनी कि सुखदेव गोस्वामी भगवान शंकर से कथा सुन रहे थे, जहाँ पे माता पार्वती को थोड़ा सा उनकी समाधि सी लग गई थी। तो शुकाचार्य सुखदेव गोस्वामी जो है वो उन्हीं के आवाज में हाँ इत्यादि से रिप्लाई कर रहे थे। तो तल्लीन होकर भगवान शंकर कथा सुना रहे थे, और वहां पर दिव्य भागवत कथा का श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी ने व्यास महर्षि के पत्नी के गर्भ से सुखदेव गोस्वामी के रूप में वे प्रकट हुए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मिन्। कोई भी विद्या या कोई भी ज्ञान या कोई भी कथा, उसके मूल में जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वहां पर भगवान शंकर ही उपस्थित होंगे। किसी भी प्रकार का, वो चाहे योगाचार्य हो, आदि योगी भगवान शंकर है, चाहे संस्कृत व्याकरण हो, माहेश्वर सूत्र उन्होंने पाणिनि ऋषि को प्रदान किए, वो चाहे भागवत का ज्ञान हो, वो चाहे ज्योतिष का ज्ञान हो, वो चाहे संगीत का ज्ञान हो, नटराज के रूप में नृत्य का ज्ञान हो, हर चीज के मूल में भगवान शंकर है, जो अपने उच्च आसन पर बैठ के सारे संसार को सिखा रहे हैं कि किस विविध विविध प्रकार से आप भगवान कृष्ण को, राजा रामचंद्र को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए तो उनको वैष्णवानाम यथा शंभो कहा गया। सभी वैष्णवों के मुकुटमणि, शिरोमणि है
भगवान शंकर जो राजा रामचंद्र को अति प्रिय है, बहुत ही अधिक प्रिय है। एक जगह तो राम जी यहां तक कह देते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो जन मोहे सपने हु नहीं पावा। यदि कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए वो अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त मानता है और भगवान शिव की अवहेलना करता है, भगवान शिव की निंदा करता है, तो शिवद्रोही मम दास कहावा, राम जी कह रहे हैं शिवद्रोही है और खुद को राम का भक्त कह रहा है। सो जन मोहे सपने हु नहीं पावा, ऐसे लोग मुझे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो इस प्रकार से महान शंकर ही इस राम कथा को अपनी पत्नी पार्वती जी को सुना रहे हैं। आरंभ करते हैं। तो आज के इस सत्र में हम लोग भगवान राम जी राम रूप में क्यों प्रकट हुए, उसके क्या कारण बने, उन अवतार के हेतुओं को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सुनगिर जाहरी चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाय, हरि अवतार हेतु जेई हुई, इदमित्थम कही जाय न सोई। सुन गिरजा, हे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती, हरि चरित सुहाय, बड़ा सुंदर सबको मनोरम लगने वाला हरि चरित्र मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जो कैसा है बोले, विपुल विशद निगमागम गाय, बड़ा ही विपुल है, बड़ा ही विस्तृत है और विशद है, निर्मल है, जिसको सारे वेद पुराणों ने गाया है। हरि अवतार हेतु जय हुई, भगवान का अवतार जिस कारण से होता है, इदम इत्थम कही जाई न सोई, बस यही भगवान के अवतार के प्रयोजन है, कारण है, ऐसा आप नहीं कह सकते। भगवान के अवतारों के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भले ही राजा रामचंद्र राम अतर्क बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कहु कहि स्वमति अनुमाना। राम अतर्क्य है, ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं राम जी को समझना किसी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं है। बुद्धि मन वाणी से राजा रामचंद्र परे है, लेकिन फिर भी तदपि संत मुनि वेद और पुराण, साधु संत अपने अनुभव के साथ, मुनिगण ऋषि मुनि वेद पुराण जैसे जैसे वर्णन करते हैं राजा राम जी के बारे में, उन्हीं के द्वारा कुछ सोचकर सुनकर समझकर, जस कछु कहि स्वमति अनुमान, मैं अपने मति के अनुसार राम जी के अवतारों के कुछ कारण समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे हम कल देख रहे थे, एग्जैक्टली उन्हीं श्लोकों का अनुवाद यहाँ पर गोस्वामी जी कर रहे हैं। भगवान शंकर बता रहे हैं, जब जब हुई धर्म कई हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, कर ही अनीति जाई न भरणी, सिद ही विप्रधेनु सुर धरणी। जब जब हुई धर्म कई हानि, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, अधार्मिक असुर जो अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, गर्व में चूर होते हैं, ऐसे राक्षसों की संख्या जब बढ़ जाती है तो राक्षस क्या करेंगे? राक्षस क्या करते हैं? कर ही अनीति, सबसे पहले तो वो नीति का परित्याग कर देते हैं। जाए नवरणी, इतना अन्याय इतना अत्याचार करने लगते हैं जिसका कोई वर्णन आप नहीं कर सकते। और सीध ही विप्र धेनु सुरधरणी, से विप्र ब्राह्मणों को, संतों को, भक्तों को, गौ माता को, देवी देवताओं को और खास करके धरणी माता को बहुत कष्ट होता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब ऐसी अवस्था में भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं। कभी वराह बन के आते हैं, कभी मत्स्य बन के आते हैं, कूर्म बन के आते हैं, नरसिंह बन करके आते हैं, वामन परशुराम इत्यादि भगवान अनेक अवतारों को धारण करते हैं। और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, भगवान अपने भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, राजा रामचंद्र के रूप में भगवान जो प्रकट हुए हैं, तो उनके प्राकट्य के अनेक हेतु हैं, अनेक कारण हैं और सभी परम विचित्र, सब एक से बढ़कर एक हैं और एकदम परम विचित्र है, बड़े सुंदर। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि भगवान के दूत जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे,
उनको ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये जो चतुष कुमार है, उन्होंने भगवान के दो विशेष द्वारपालों को दंड दिया, अभिशाप दिया कि आप असुर कुल में प्रकट हो जाओ, राक्षस के रूप में प्रकट हो जाओ। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। इस संसार में जय विजय के नाम से जाने जाने वाले भगवान के ये दो द्वारपाल थे, भगवान के ये दो दूत थे, जिनको चतुष कुमारों ने श्राप दिया था। कथा आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक दिन ये सारे ब्रह्मवादी चतुष कुमार भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की ओर चल पड़े। तो रास्ते में जय विजय जी ने उनको रोका, क्योंकि ये जो चतुष कुमार हैं, सबसे पुरातन होते हुए, सबसे ब्रह्मा जी के आदि पुत्र होते हुए भी वे हमेशा अपने योग बल से, योग शक्ति से अपने आप को छोटा सा कुमार के रूप में बनाए रखते हैं। कुमार अवस्था जो होती है, बताया गया है कि उम्र जन्म से लेके दो वर्षों तक की जो आयु होती है उसको शैशव अवस्था कहते हैं, शिशु अवस्था कहते हैं। और 3 से 5 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। तो ये जो चतुष कुमार हैं, चारों कुमार, ये कभी भी 5 साल की आयु को पार नहीं करते। दिग्वाससः, दिगंबर हैं, दिशाही जिनके वस्त्र हैं, और हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ऐसे सदैव भगवान के नामों का उच्चारण करते तीनों लोगों को पावन करते घूमते रहते हैं। एक दिन वैकुंठ की ओर चल पड़े तो द्वारपाल जय विजय जी ने उनको रोका। तो जय विजय ने जैसे उनको रोका तो 4 कुमार बड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा, क्यों रोक रहे हो? तो इन दोनों जय विजय को लगा कि ये तो छोटे छोटे से बालक है और गलती से खेलते कूदते हो सकता है यहाँ पे आ गए हो। तो उन्होंने कहा, ये कोई खेलने का मैदान नहीं है, कोई क्रीड़ा आंगन नहीं है, तो आप अंदर नहीं जा सकते, भीतर नहीं जा सकते, आप छोटे छोटे से बालक हो। तो 4 कुमार ने कहा कि आप हमको बालक समझते हो, इसका अर्थ आप किसी अन्य को बड़े भी समझते होंगे। तो इस संसार में जिसके दृष्टि में द्वंद है, वो व्यक्ति इसी संसार में रहता है, वो भगवान के धाम जाने के लायक नहीं होता है। भगवान के धाम वे ही लोग जा सकते हैं जिनकी दृष्टि द्वंद्वातीत हो गई है, जिनके दृष्टि में द्वंद नहीं है। भगवान ने भी गीता में काफी बार इसको पुश किया है, इसको कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंद अर्जुन, निर्द्वंद बनो, द्वंद से मुक्त हो जाओ। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, भक्त द्वंद्वातीत होता है, जिसमें द्वंद नहीं होता। द्वंद का अर्थ है दो, द्वंद। जैसे ये छोटे बालक हैं तो कोई बड़ा भी होगा, ये काला है, ये गोरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये धनी है, ये गरीब है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, ये वो। तो इस तरह का भाव जिस व्यक्ति के हृदय में है, ऐसे लोग भगवान के धाम में, खास करके वैकुंठ में नहीं निवास कर सकते। तो इन द्वारपालों को क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया। क्रोध में आकर कहा कि आप इस धाम में रहने लायक नहीं हो, आप नीचे चले जाओ, भूलोक में चले जाओ। तो कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि उन्होंने 7 जन्म लेने का श्राप दे दिया, 7 जन्म आप लोगे। तो भागे भागे वहां पर भगवान आए, भगवान नारायण। उन्होंने देखा अपने द्वार पर कुछ कोलाहल चल रहा है, तो भगवान विष्णु स्वयं वहां पर आए और उन्होंने 4 कुमारों से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा कि स्वामी के सेवक जब अपराध करते हैं तो वह अपराध सेवकों का नहीं होता है, उनके स्वामी का होता है। तो ये मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। तो 4 कुमार बड़े ही लज्जित हो गए, उनको बुरा लगा कि अरे भगवान हमारे पैर पड़ रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। तो उन्होंने दया करके ऐसा उशाप उनको प्रदान किया, आप चिंता न करो, आपके पास एक ऑप्शन मैं देता हूँ, एक चॉइस। देखो, श्राप तो निकल गया है, श्राप जो दिया गया है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपको एक पर्याय ये दिया जाता है, या तो आप 7 जन्म भगवान के भक्त बनकर धरती पर रहो,
अन्यथा भगवान से विमुख एक भयंकर राक्षस के रूप में आप असुर कुल में जन्म लो तो केवल और केवल 3 जन्मों में ही आप वापिस आ सकते हो। तो आपकी चॉइस है, या तो आप भक्त बन के 7 जन्म बिताओ या फिर राक्षस बन के 3 जन्म। तो जय विजय ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो बस 3 जन्म में कहाँ भगवान से दूर रहे, भगवान के वैकुंठ धाम से दूर रहे, तो हम 3 ही जन्मों में वापिस आना चाहते हैं, हमको 3 जन्म मिले, भले ही राक्षस के मिले। तो ये 3 जन्म इन्होंने दैत्यों के जन्म धारण किए और साथ ही साथ एक विशिष्ट प्रकार का आशीर्वाद 4 कुमारों ने दिया कि आप जैसे ही असुर कुल में आओगे, राक्षस दैत्य बनकर आओगे, तो भगवान श्री हरि ही अवतार लेके आपका वध करेंगे, कि यहाँ आपका वध के रूप में आपका उद्धार करेंगे और पुनः आप अपने नित्य पद को प्राप्त कर सकोगे। तो ऐसा विशेष श्राप कहो या आशीर्वाद कहो, जय विजय को प्राप्त हुआ। तो ये भी एक निमित्त बना, ये कारण बना। भगवान वे कहते हैं, विप्र श्रापते दुनवो भाई, तामस असुर देह तिन पाही, कनक कपीस अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। जब जब ये अवतार लेते थे, यहाँ पे बड़ा सुंदर एक शब्द आया है, जगत विदित सुरपति मद मोचन। ये जब भी इन्होंने अवतार लिया, तब तब उन्होंने देवराज इंद्र को बहुत परेशान किया। सुरपति का मद नष्ट करना, इंद्र को अहंकार हो जाता है हमेशा, घमंड हो जाता है। तो जब ये हिरण्याक्ष बने, हिरण्यकशिपु बने, रावण कुंभकर्ण बने, हर बार उन्होंने इंद्र को उठा के बाहर फेंका और खुद इंद्रासन पे अभिषिक्त हो गए। तो इस प्रकार से जब जब इन्होंने अवतार लिया, सत्ययुग में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए, जिनका वध क्रमशः भगवान वराह देव ने और भगवान नरसिंह देव ने किया। यही त्रेता युग में जब रावण कुंभकर्ण बन के आए, तो उनको मारने के लिए, या उनका उद्धार करने के लिए भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। पहला कारण राम जी के प्राकट्य का बताया गया। यही द्वापर के अंत में शिशुपाल दंतवक्र बन के आए, जिनका वध साक्षात भगवान कृष्णचंद्र ने किया। और कभी कभी आचार्य बड़ी सुंदर कथा ये भी सुनाते हैं, जब उनको पता चला ये जय विजय को कि ये भगवान के ब्रह्मा जी के जीवन मतलब दिन का 28वां विशेष युग है, जिसमें साक्षात भगवान कृष्ण आते हैं द्वापर के अंत में, और उन्हीं के बाद तुरंत गौरांग महाप्रभु आते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं। तो एक बार हमारे गुरु महाराज बड़े प्रेम से वे कह रहे थे कि इन जय विजय दोनों ने अपने वीजा को एक्सटेंड किया, ऐसे महाराज कहते वीजा को बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं 3 नहीं, हम तो 4 जन्म यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो पुनः एक बार उन्होंने इस कलयुग में अवतार लिया, दोनों भाइयों ने, जिनका नाम था जगाई और मधाई। जगाई मधाई के रूप में दोनों आए और जिनका उद्धार साक्षात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु ने किया। जय हो गौरांग महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार से ये भगवान के अवतार का पहला कारण उन्होंने बताया कि यही 2 जय विजय जो भाई हैं, ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए त्रेता युग में, और जिन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी से रावण कहता है कि मैं अमर बन जाऊं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे हिरण्यकशिपु कहता है मैं अमर बन जाऊं, और ब्रह्मा जी जब मना करते हैं तो हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार से वर मांगता है, ना भीतर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दिन में ना रात में, ना शस्त्र से ना अस्त्र से, ना सजीव से ना निर्जीव से, ना पशु से ना मनुष्य से। उसी प्रकार से कुछ अपना दिमाग लड़ाकर यहाँ पर रावण ने भी वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता का वरदान छोड़कर आपको जो चाहिए वो वरदान आप मांग लो। तो रावण ने कहा, आप ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु हो तो मनुष्य के हाथों से मेरी मृत्यु हो। तो इस राक्षस को ऐसे लग रहा था कि ये जो मनुष्य है, मनुष्यों को, ये राक्षस दैत्य असुर जो होते हैं मनुष्यों को कुछ गिनते ही नहीं। उन्होंने कहा, ये मनुष्य जाति इतनी निकृष्ट जाति है, इन मनुष्यों को तो हम हर रोज सुबह दोपहर शाम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में खाते ही रहते हैं, ये मनुष्य हमको क्या मारेंगे, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, ऐसा भाव इस राक्षस में था। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि यदि आप मेरी मृत्यु लिखना चाहते हो तो एक मनुष्य के हाथ से लिखिए, मनुष्य के हाथों से मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं।
तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तो मानव रूप में राजा रामचंद्र प्रकट हुए और उन्होंने इस राक्षस का वध किया। तो राम जी के अवतार का ये पहला कारण उन्होंने बताया, जय विजय का उद्धार करने के लिए, रावण कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए। दूसरा एक कारण बताते हुए वे कहते हैं कि एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न। एक कल्प की बात है कि जालंधर नाम का एक बड़ा भयंकर दैत्य था, राक्षस था, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा, वृंदा देवी। और ये जालंधर, ये इसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया था और उसका कारण था उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म। वो अपने पति की इतने मनोभाव से सेवा करती थी, ऐसा इसका पवित्र चरित्र था, पातिव्रत धर्म था, कि जिसके कारण ये राक्षस को कोई नहीं मार सकता था। शंभु की न संग्राम अपारा, इनके साथ एक बार तो साक्षात भगवान शंकर लड़ पड़े। धनुज महाबल मरई न मारा, इतने प्रयास करने पर भी वो मरता नहीं था। तो सारे संसार में इस राक्षस ने हाहाकार मचा दिया था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जित ही पुरारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले इतने महान योद्धा, युद्ध कला में कुशल भगवान शंकर भी जिसको जीत नहीं पा रहे थे, उसका कारण उसकी परम सती उनकी पत्नी वृंदा देवी थी, उसका व्रत था। तो सारे देवताओं ने मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि ये राक्षस मर जाए। तो भगवान साक्षात जालंधर का रूप धारण करके वृंदा देवी के पास जाते हैं और उनका सतीत्व नष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। तो उससे उस राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और भगवान शंकर उनका वध कर देते हैं। ये बात जब वृंदा देवी को पता चलती है, छल करी तारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कार्य कीन, जब ते जाने हो मरम तब, श्राप कोप करी दीन। बड़े क्रोध में आकर वृंदा देवी ने भगवान को श्राप दे दिया। वृंदा देवी ने कहा कि अरे प्रभु, आप तो दीन दयालु हो, कृपा सिंधु हो, दया निधि हो, लेकिन संसार तो बस ऐसे कहता है, लेकिन मेरे संदर्भ में मैं देख सकती हूँ कि पता नहीं आपका हृदय क्या पाषाण का बन गया, पत्थर का बन गया, पता नहीं कैसे इतना कठोर बन गया है। तो आपको जरा भी दया नहीं आई मुझ पर और इस तरह से मेरा व्रत आपने भंग कर दिया, तो आपका हृदय पाषाण जैसा कठोर हो गया। तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पत्थर बन जाओगे, आप शिला रूप में हो जाओगे। तो भगवान ने बड़े ही प्रेम से, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपालु भगवाना। उनके श्राप को भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया, बोले ठीक है, संसार के कल्याण के लिए मैं किसी भी प्रकार का श्राप उठाने के लिए तैयार हूं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, जग के कल्याण हेतु किसी भी प्रकार के दुखों को, कष्टों को सहन करने के लिए प्रभु तैयार हो जाते हैं। ये कौरवों का वध करते समय भी भगवान ने अलग अलग प्रकार से लीलाएं की, पांडवों का सहाय किया। और जयस्तु पांडुपुत्राणाम ये शाम पक्षे जनार्दन, भगवान ने असंभव कार्य कर कर दिखाया, पांडवों की जीत हुई, कौरव सब मारे गए। ये दृश्य जब माता गांधारी ने देखा तो बड़ी नाराज हुई कि मेरे सामने, माता पिता के सामने पुत्र जब मर जाते हैं तो ये बड़ी ही दुखद घटना होती है। तो क्रोध में भर के वहां पर भी वे भगवान कृष्ण को श्राप देती हैं गांधारी, कि जैसे मेरा सारा परिवार हमारे आंखों के सामने नष्ट हुआ, उसी प्रकार से आपको भी श्राप देती हूँ। हे माधव, आपके सारे वंशज जो हैं, कृष्ण वंशी, आपके आंखों के सामने आपस में ही लड़ झगड़ के मर जाएं। तो ये उनकी वाणी को भी या उनके श्राप को भी भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया। तो यहाँ पर भी ये वृंदा देवी से इस श्राप को स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान वृंदा देवी से कहते हैं कि देखो, इस बात को तुम भी जानती हो कि तुम्हारा पति अधर्मी था, अधार्मिक था, गलत कार्य करता था, लोगों को परेशान किया करता था और किसी भी प्रकार से उसको मारना ये अनिवार्य था। लेकिन ऐसे अधार्मिक व्यक्ति का पक्ष लेने के कारण ये जो जितनी भी तुम्हारी तपस्या है, व्रत है, आपका ये जो विशेष पातिव्रत व्रत है, धर्म है, तो इसका कोई लाभ तो हो नहीं रहा था।
तो इसलिए चूंकि आप भी एक अधार्मिक व्यक्ति अधर्मी का पक्ष ले रही थी, तो आप भी अपराधी हो। इसलिए आपको भी मैं श्राप देता हूं। भगवान ने कहा आप भी एक पेड़ के रूप में हो जाओ। आप एक पेड़ के रूप में हो जाओ। तो वृंदा देवी ही तुलसी महारानी बनती है, वृंदा देवी तुलसी महारानी। और वृंदा देवी कहती है प्रभु, ये तो भौतिक संसार के सारे पति हैं, जो आज है कल नहीं है, लेकिन सारे संसार के जगत पति तो आप हो, जगन्नाथ आप हो। कृपा करके आप मेरा पानी ग्रहण करें और मुझे आपके चरणों की दासी समझकर स्वीकार करें और नित्य निरंतर आपके चरणों में वास प्रदान करें। तो इसलिए हम देखते हैं शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है, वृंदा देवी शालिग्राम का विवाह होता है। तो भगवान ने इस पतिव्रता स्त्री को अपने चरणों का आश्रय प्रदान किया। वृंदा देवी ने हाथ जोड़कर एक प्रार्थना की भगवान से। वे कहती हैं कि हे प्रभु, जालंधर को छल से मारा गया और जालंधर को अपना बल पौरुष दिखाने का कोई अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था कर दो कि आपके साथ उसका आमने सामने प्रत्यक्ष युद्ध हो और वो आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो, तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने तथास्तु कहते हुए कहा कि जैसा आप चाह रही हो देवी, वैसा ही होगा। तहा जलंधर रावण भयहु, रणहति राम परम पद दयहु। तो यही जालंधर आगे चल के रावण बना, जिसने संग्राम में राम रावण युद्ध में राम जी के साथ युद्ध करता है और उन्हीं के हाथों से रणहति राम परम पद दयहु, जिसको राजा रामचंद्र ने उस रण में परास्त किया और उसको परम पद प्रदान किया। तो ये दूसरा एक कारण बताया गया है, जालंधर के रूप में ये रावण प्रकट हुआ, उसको मारने के लिए भगवान आए। तीसरा एक कारण बताया गया है, मनु और शत्रुपा जी। ये जो मनु महाराज हैं, शत्रुपा पहले मनु, स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु महाराज, शत्रुपा देवी, ये बहुत बढ़िया से इन्होंने संसार को अपने संतानों से भर दिया। उनके पांच संतानें हुई, जिसमें से 3 कन्याएं थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति, जिनका विवाह क्रमशः आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ। 2 उनके पुत्र हुए, बड़े हुए महाराज प्रियव्रत, छोटे हुए उत्तानपाद राजा। इनके वंश आगे बढ़े। उत्तानपाद महाराज के वंश में भगवान ने अवतार लिया पृथु महाराज के रूप में, प्रियव्रत महाराज के वंश में भगवान ने अवतार लिया ऋषभ देव के रूप में। तो इस प्रकार से मनु महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बहुत बढ़िया से इसे अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अंत में अपने बच्चों को राज्यपाट सौंपकर वो वन की ओर चले गए और वहां पर उन्होंने बड़ी भयानक तपस्या की, कठोर तपश्चर्या की। वर्णन किया गया है उन्होंने लगभग 23,000 वर्षों तक तपस्या की। ए विधि बीते वर्ष षट, सहस बारी आहार, संवत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार। बीते वर्ष षट, 6,000 वर्षों तक बारी आहार, जलपान करके उन्होंने तपस्या की और उसके बाद में संवत 7 सहस्त्र पुनि, रहे समीर आधार, और फिर 7,000 वर्षों तक केवल जलपान करना भी बंद कर दिया। वे केवल वायु पवन आहार करके उन्होंने बिताया। तो 6,000 और 7,000 हुए 13,000। और आगे चल के वर्ष सहस दश त्यागे उसो, ठाड़े रहे एक पद दो। दोनों पति पत्नी 10,000 वर्षों तक उन्होंने जल भी छोड़ दिया, वायु भी छोड़ दिया। दोनों क्षमा कीजिए, दोनों पति पत्नी जो है मनु महाराज और शत्रुपा देवी, एक पैर पर वे खड़े रहे, ठाड़े रहे एक पद दो। और इस प्रकार से उन्होंने भयंकर, वो 13,000 वर्ष, ये 10,000, लगभग 23,000 वर्षों तक उन्होंने बड़ा ही भयंकर तप किया। भाव कुछ नहीं था, उनके मन में कोई इच्छा नहीं थी। सहज उनका मन लग गया था कि अभी विरक्त हो गए, घर संसार से मुक्त हो गए,
तो थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, तपश्चर्या, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। बिना कोई आशा अपेक्षा के वे इस प्रकार की तपस्या कर रहे थे। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। किसी भी प्रकार की पीड़ा उनके मन में नहीं थी, उनके शरीर में केवल अस्थि पंजर रह गया था। भयंकर तपश्चर्या करते करते उनका सारा शरीर कृश हो गया था। इस प्रकार से जब इन्होंने भयंकर तपस्या की तो भगवान उनके सामने प्रकट हुए, और भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ऐसी सुंदर वाणी में घोषणा की कि हे महाराज, हे मनु महाराज, आपकी जो भी मनोकामना है आप मांग लीजिए। कैसी वाणी थी भगवान की? देखिए, भगवान की वाणी के बारे में बताया गया है, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई। जब कानों के माध्यम से भगवान की वाणी उनके हृदय में प्रविष्ट हुई, इतना आनंद उनको आया। यह वाणी कैसी थी? बोले मृतक जियावनी गिरा सुहाई। भगवान की वाणी ऐसी थी, जैसी वाणी इतनी मधुर थी कि किसी मुर्दे के कान में भी गिर जाए तो वो भी जी उठे। ऐसी सुंदर वाणी भगवान की थी। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे ही भगवान की वाणी उनके कर्णों में प्रविष्ट हुई, हृदय में चली गई, तो उनका सारा शरीर पुनः धष्ट पुष्ट हो गया। मानहु अबहि भवन ते आए, ऐसे लग रहा था कि अभी अभी अपना राजपाट छोड़ के आए। तो इस प्रकार से बोले मुनि करी दंडवत प्रेम न हृदय समाप्त। सब दोनों ने मिलकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया। उनके हृदय में प्रेम का प्रेम की बाढ़ आ गई थी भगवान के प्रति। भगवान ने जब कहा कि आपको जो चाहिए निसंकोच होकर आप मांग लीजिए, तो यहाँ पर मनु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाग मागु नृप मोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। इस संसार में प्रभु जी आपके लिए अदेय ऐसा कुछ नहीं है। संसार में हर एक चीज आप प्रदान कर सकते हैं, तो आप मेरा मनोरथ भी निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तो क्या चाहिए? तो वे कहते हैं, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहु सती भाव, चाहू तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। आप तो अंतर्यामी भगवान हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, आपसे क्या छुपाना। तुम सन कवन दुराऊ, आपसे मैं क्या छुपा सकता हूँ। चाहूं तुम ही समान सुत, हे प्रभु मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान को देख के वो इतने मोहित हो गए, इतने आकृष्ट हो गए, उन्होंने कहा मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तव समान, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा बालक हमको चाहिए। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एवं मस्तु कृपा निधि बोले। भगवान ने कहा तथास्तु, हे महाराज जैसे आप चाह रहे हो वैसा ही होगा। भगवान ने कहा आपका बालक मेरे जैसा होगा। फिर भगवान सोचने लगे, संसार में मेरे जैसा कौन है, कौन हो सकता है जो मेरे जैसा हो। भगवान खुद गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है और ना ही मेरे समान कोई है। इसलिए भगवान का एक नाम है असमऊर्ध्व। असमऊर्ध्व, भगवान के समान भी कोई नहीं है, भगवान से बढ़ चढ़कर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, आप सरिस खोजौ कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। आप उस सरिस मेरे जैसा खोजौ कहाँ जाई, इस संसार में जाके मैं कहाँ खोजता रहूं, जबकि मैं जानता हूं इस संसार में कोई मेरे जैसा नहीं है, और कहाँ उसको ढूंढता फिरूं जो मेरे जैसा हो। इसलिए नृप तव तनय होब मैं आई, ये नृप मैं ही खुद आपका तनय बन जाऊंगा, आपका बालक बन जाऊंगा, आप चिंता ना करो। तो इस प्रकार से भगवान ने फिर माता से पूछा, हे देवी शत्रुपा जी आप क्या चाहती हो बताओ। तो वे भी कहती हैं, शत्रुपा जी कहती है, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बर जो रुचि तोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे स्वामी मनु महाराज ने, स्वयंभू मनु महाराज जी ने जो वर मांगा है प्रभु, सोई कृपाल मोहि अतिशय प्रिय लागा, वही वर हमें अच्छा लगा है, आप कृपा करके हमारे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाए। तो ये तीसरा कारण बताया कि मनु महाराज स्वयं दशरथ महाराज बन के आए
और शत्रुपा जी जो है वे ही कौशल्या बन के आई हैं। तो उनके गर्भ से साक्षात राम जी के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब अंतिम छोटी सी एक कथा, मैं बड़ी सुंदर कथा है रामचरितमानस में, इसको हम सुनते हैं कि किस प्रकार से एक बार नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद मुनि, भगवान के इतने बड़े भक्त होते हुए भी नारद मुनि ने श्राप दे दिया। महादेव जी हंसकर कह रहे हैं, ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। एक तो भगवान शंकर ऐसे कह रहे हैं कि नारद मुनि ने भगवान को श्राप दे दिया। इतना सुनते ही गिरिजा चकित भई, पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। पार्वती कहती है नारद मुनि एक तो विष्णु भक्त है और ऊपर से ज्ञानी है, उनको कैसे अज्ञान छा गया, उन्होंने कैसे भगवान को श्राप दे दिया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति विष्णु ने, लक्ष्मी के पति विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। मेरे मन में बहुत आश्चर्य हो रहा है, तो कृपा करके ये कथा आप हमको सुनाई। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेई क्षण होई। बोले विहसी, सबसे पहले तो नारद मुनि की याद करके भगवान शंकर, क्योंकि इस लीला के शंकर भी एक पार्ट है, शंकर भी एक किरदार है इस विशेष लीला के। तो उस लीला को याद करके भगवान शंकर भी खूब हंस रहे, प्रसन्न हो रहे, और भगवान हंस कर कहते हैं देखो देवी, इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कभी कौन से मूर्ख को ज्ञानी बना दे, कौन से ज्ञानी को मूर्ख बना दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान तृण को वज्र बना सकते हैं, वज्र को तृण बना सकते हैं। जय जस रघुपति करहि जब, सो तस तेई क्षण हुई। जैसे रघुपति जिसको करना चाहते हैं उसी क्षण वैसा बन जाता है। ज्ञानी का पागल हो जाता है, पागल का ज्ञानी हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कथा सुनाई। एक बार की बात है, नारद मुनि ही भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमन नामे। भगवान का नाम उच्चारण करते, वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरि सुहावनी, आश्रम पर्ण पुनित सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भाव। एक बार की बात है, हिमालय की एक विशेष कंदरा में गुफा में नारद मुनि प्रविष्ट हुए। वहां से खल 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 अलकनंदा नदी बह रही थी, और उस अलकनंदा में अलग अलग प्रकार के कमल पुष्प खिले हुए थे। उनकी सुगंध लेते हुए मंद मंद सुगंधित ऐसा शीतल पवन वायु वहां से बह रहा था। समीप अति सुंदर ऐसा मनोरम वातावरण बन गया था। देखिए देव ऋषि मन अति भावा, देवर्षि नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और उन्होंने सोचा कि इतना सुंदर वातावरण है, तो यहाँ पर बैठ के प्रभु का ध्यान किया जाए। तो जैसे ही वो भगवान का ध्यान करने लगे, सुमिरत श्री हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। सहज उनका मन समाधि में लग गया, सहज समाधि में लग गया। वैसे नारद मुनि को एक विशिष्ट प्रकार का श्राप है। दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया कि आप एक स्थान पर टिक नहीं सकते, लेकिन उस स्थान का ऐसे प्रभाव था जहां पर नारद मुनि का श्राप नारद मुनि पर कार्य नहीं कर रहा था, और नारद मुनि वहां पर स्थिर हो गए। और जैसे ही नारद मुनि वहां पर स्थिर हो गए, मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्मान। तो जैसे ही नारद मुनि का ध्यान लग गया, सुरेश देवताओं के राजा इंद्र को बड़ा डर लगने लगा, कहीं समाधिस्थ होके भगवान से मेरा इंद्रासन न छीन ले। तो उन्होंने कामदेव को बुलाया और कहा कामदेव आप चले जाओ और जाकर इस नारद मुनि की तपस्या में व्यत्यय निर्माण करो, इसको भंग कर दो, इनकी तपस्या को नष्ट कर दो। तो इस प्रकार से जब कामदेव अपने सभी साथीदारों के साथ, बहुत सारे
अप्सराओं के साथ वहां पर आया। मीन ध्वज, कामदेव का एक नाम है मीन ध्वज, उनके ध्वजा पर मीन होता है और 5 अलग अलग प्रकार के पुष्प बाणों को वो धारण करते हैं, अलग अलग फूलों के बाण होते हैं। तो वहां पर आए और उन्होंने कही आश्रम ही मदन जब गयहु निज माया बसंत निर्मय हो। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, वहां पर बड़ा सुंदर वसंत ऋतु छा गया और कुसुमित विविध विटप बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा, बड़ा सुंदर ऐसा वातावरण निर्माण हुआ। और रंभादिक सुर नारी नबीना सकल असमसर कला प्रवीण, सारी अपनी कलाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करते हुए वहां पर रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि जो अप्सराएं हैं नृत्य करने लगी, गेंद से खेलने लगी, इधर उधर विचरण करने लगी। तो इस प्रकार से देखी सहाय मदन हर्षाना कीन हेसी पुनि प्रपंच विधि नाना, अलग अलग प्रकार के वो प्रपंच करने लगा कामदेव। अंत में उसने अपने सारे बाणों को चलाया, लेकिन अपने सारे उपाय करने पर भी नारद मुनि का मन डक से मग नहीं हुआ। नारद मुनि एकदम स्थिर बने रहे। सहित सहाय सभीत अति मानि हारी मन मैन, गए से जानी मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। एकदम आर्त वाणी से रोते बिलखते हुए कामदेव जाकर नारद मुनि के पैरों में पड़ा और प्रार्थना करने लगा, मुनि आप क्षमा कर दीजिए, देवराज के कहने से मैं आपका तत्व भंग करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो कृपा करके आप भगवान शंकर जैसे मुझे जला के भस्म मत कर देना, मैं आपके चरण में शरण आया हूँ। भय हुन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नारद मुनि के मन में कोई क्रोध नहीं आया। नारद मुनि ने कहा चिंता मत करो, मैं भगवान शंकर नहीं हूँ। भगवान शंकर ने काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध में आकर उसने आपको जला दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, मैं काम और क्रोध दोनों का विजेता। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि आप चिंता न करो और इंद्र से जाके निश्चिंत होके कहो कि मैं कोई इंद्रासन के लिए युद्ध नहीं कर या तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सहज मेरा मन प्रभु के चरणों में लग गया तो तपस्या कर रहा था। नाई चरण सिर आयस पाई, गए मदन तब सहित सुहाई, अपने संगतियों को लेके, साथियों को लेके मदन चला गया। इस प्रकार से जब इनके मन में ये भाव आया कि देखो सही में मैं भगवान शंकर से भी बढ़ चढ़ करके हो गया, भगवान शंकर ने तो काम को तो जीत लिया लेकिन क्रोध को न जीत पाए, उन्होंने क्रोधाविष्ट होकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन मैं तो भगवान का इतना महान भक्त बन गया हूँ, इतना विशेष भक्त बन गया हूँ, मैंने तप भी किया, मैंने काम को भी जीत लिया और क्रोध पर भी नियंत्रण रखा। तो इस लीला को किसी ना किसी को तो सुनाना पड़ेगा। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहम अहम इति मन माही। काम को मैंने जीता है ऐसा अहंकार का अंकुर, बीजांकुर उनके हृदय में प्रकट हुआ और कामदेव को मैंने जीता है, क्रोध को मैंने जीता है, ऐसे अहंकार के साथ वे कैलाश लोक गए और मार चरित शंकर ही सुनाई, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और एकदम बड़ा चढ़ाकर अपने चरित्र को, ऐसा ऐसा हुआ, कामदेव आया, ये किया, वो किया, ऐसा किया, लेकिन मैं डर से मग नहीं हुआ, मेरा मन स्थिर रहा और ऊपर से मैंने आपके जैसा क्रोध भी नहीं किया। भगवान शंकर को उन्होंने सारा चरित्र सुनाया। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से इन सारी लीलाओं को सुन लिया और कहा नारद मुनि आप सही में धन्य हो, महान हो, आपके चरणों में अनंत कोटि नमन। लेकिन मैं आपको एक सीख देना चाहता हूं, आप इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनाय हु मोही, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हु प्रसंग दुराए तबहु। वे कहते हैं कि जैसा वर्णन करके आपने मुझे ये चरित्र सुनाया है, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, ऐसी कथा आप जाके भगवान श्री हरि विष्णु को मत सुनाना, विष्णु को मत सुनाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। यहाँ पर याज्ञवल्क्य मुनि भी ये कथा भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। भरद्वाज वे कहते हैं कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवाना। इस संसार में हरि की इच्छा से बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान की इच्छा इतनी बलवान है, इतना सुंदर उपदेश भगवान शंकर ने दिया है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, बिना सोचे समझे नारद मुनि जो है
वो सीधा चले गए वैकुंठ लोक और वहां पर जाकर लंबी चौड़ी कथा उन्होंने भगवान श्री हरि को सुनाई। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले विहचरी बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न कीन मुनि दाया। हे महामुनि, बहुत दिनों के बाद आए हो, क्या कारण है आपके आने का? कोई विशेष प्रयोजन? तो काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। भगवान शंकर ने उनको मना किया था, लेकिन फिर भी काम को जो उन्होंने जीता था, काम विजय की अपनी खुद की लीला उन्होंने एकदम बड़ा चढ़ाकर भगवान श्री हरि से कही। अति प्रचंड रघुपति कई माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान शंकर कहते हैं, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की शक्ति माया के चंगुल से बच गया हो। अति प्रचंड रघुपति कई माया, दैवी, भगवान खुद कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस प्रकार से भगवान की माया से कौन बचा हुआ है जो नारद मुनि बच जाएंगे। तो इस प्रकार से जब उन्होंने चरित्र कहा, तो भगवान ने कहा, नारद जी आप सही में धन्य हो, आप महान हो। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ही आपके चरणों में दंडवत करना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, ये तो मेरा कोई महात्म्य नहीं है, ये तो बस आप ही की कृपा से संभव हो पाया, वरना मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, ऊपर ऊपर से बोला जाता है, तो इसको दंभ कहते हैं। ऊपर से मुख से कुछ और कहा जा रहा है, भीतर कुछ और भाव है, अंदर से तो लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भगवान प्रसन्न हुए, भगवान को मैंने बताया कि देखो मैं कितना महान हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। करुणा निधि मन दिख बिचारी, उर अंकेर हो गर्भ तरु भारी। भगवान करुणा निधि, उन्होंने देखा कि उनके हृदय में एक महान पेड़ बन गया है अहंकार का, तो इसको नष्ट करना तो मेरा कर्तव्य है। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। अहमति अधिकाई, उनका अहंकार और बढ़ गया और बढ़ गया, और भगवान को प्रणाम करके वहां से निकल पड़े। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। भगवान ने ऐसी कठिन अवस्था निर्माण की, भगवान श्रीपति ने निज माया तब प्रेरी, अपनी माया को आगे भेजा। कहा कि नारद मुनि की बुद्धि थोड़ी सी ठिकाने पर लानी है, माया देवी अपनी लीलाओं को प्रस्तुत करो। इतना सुनते ही महामाया ने नारद मुनि के रास्ते में ही एक निर्जन स्थान पर इतना सुंदर एक नगर बनाया। बस ही नगर सुंदर नर नारी, श्रीनिवासपुर उसको कहते हैं, श्रीनिवासपुर। वीर चेऊ मग महू नगर, तेहि सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। श्रीनिवासपुर उन्होंने बनाया। श्रीनिवास मतलब जहाँ पर माया देवी श्रीनिवास कर रही है, माया निवास कर रही, भगवान की शक्ति निवास कर रही। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु मनु मन सिज रति तनुधारी। वहां पर जितने भी स्त्री पुरुष थे, वो सारे रति देवी और कामदेव जैसे सुंदर थे सारे लोग। नारद मुनि ने जब देखा कि इतना सुंदर ये नगर मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा, तो नारद मुनि उस नगर में श्रीनिवासपुर में चले गए और उन्होंने देखा कि अरे वाह, कितने सुंदर लोग यहाँ पर विचरण कर रहे, तो इनका राजा कितना सुंदर होगा। तो जैसे राजमहल में प्रविष्ट हुए, तो वहां के जो राजा थे उनका नाम था शील निधि महाराज। ते पूर्व बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। तो वो शील निधि राजा जैसा उनका नाम था। शील निधि, शील के मतलब चरित्र के वे आगार थे, सागर थे, बड़े ही विनम्र थे, शील दया से युक्त थे, चरित्र से युक्त थे। तो नारद मुनि को उन्होंने लाया, नारद मुनि को उच्च आसन पर बिठाया, उनके चरणों का धोवन पाद प्रक्षालन हुआ। और नारद मुनि ने उनको जब पूछा कि राजन आपका परिचय, तो वो कहते हैं, नारद मुनि मैं आपका दास शील निधि महाराज इस श्रीनिवासपुर का राजा हूँ, और राजा के भांति मैंने अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण किया है। मेरे राज्य में सारी प्रजा बड़ी सुंदर है, बड़ी प्रसन्न है, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं बहुत दुखी। बोले क्या आपको दुख है? तो उन्होंने कहा कि मेरी एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका रूप, विश्व मोहिनी मेरी एक कन्या है, और मैं चाहता हूं उसका विवाह हो। तो चूंकि आप त्रिकालज्ञ हो,
आप कृपा करके मेरी कन्या के लिए सुयोग्य वर बताइए। तो इतना सुनते ही नारद मुनि तो अहंकार में थे, उन्होंने कहा हाँ मैं त्रिकालज्ञ हूँ, लाइए बुलाइए अपनी बेटी को, मैं उसका हाथ इत्यादि देखकर उसका भविष्य देखकर बता दूंगा। तो वो आई, अपने चेहरे को ढकती हुई घूंघट ओढ़कर आई। जैसे ही नारद मुनि को उन्होंने जलपान आदि कराया तो नारद मुनि ने झुक के उनका रूप देखा, तो ये भगवान की ही विशेष माया है। तो नारद मुनि जैसे उन्होंने देखा उस स्त्री को, विश्व मोहिनी को, नारद मुनि एकदम स्थिर हो गए, स्तब्ध हो गए, जैसे कोई चित्र बना दिया हो नारद मुनि का, ऐसे एकदम नारद मुनि अवाक हो गए। नारद मुनि ने देखा कि मैंने पूरे जीवन काल में, मैं तीनों लोकों में भ्रमण करता हूँ, इतनी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। तो नारद मुनि को पूछा, प्रभु जी आप उनका भविष्य बताने वाले थे? बोले हाँ हाँ, इसका विवाह अवश्य होगा। और कौन होगा पति, कौन होगा तो ये तो आपको समय में ही पता चलेगा, समय पर ही पता चलेगा। लेकिन जो भी इसका पति होगा वो त्रिगुणेश्वर होगा, तीनों संसार में उसका मान सम्मान होगा। राक्ष देवता तो देवता, असुर राक्षस भी उसका मान सम्मान करते हैं। अब वो हर प्रकार के शत्रुओं से निर्लिप्त है, अजात शत्रु होगा, हर समाज में उसका मान सम्मान होगा, त्रिकालज्ञ होगा, भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त होगा, ऐसे होगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो अपना ही वर्णन कर रहे थे, मानो वो उनके मन में इच्छा जागृति कि मैं ही इसको पत्नी के रूप में प्राप्त करूंगा। तो उन्होंने शील निधि महाराज से हाथ जोड़ के निवेदन किया। नारद मुनि ने कहा आप एक काम करो, इस कन्या का आप स्वयंवर कर दो, ये अपने मर्जी से चुनेगी, आप डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो, तीनों लोकों में जितने भी सुंदर सुंदर राजकुमार आएंगे सबसे सुंदर जो होगा, क्योंकि ये इतनी सुंदर है, विश्व को मोहित करने वाली विश्व मोहिनी, तो इसको अपने अनुरूप पति मिलना चाहिए। तो इसका आप क्या करो, स्वयंवर करो। तो शील निधि महाराज ने स्वयंवर की घोषणा कर दी। तो नारद मुनि वहां से सीधा भागे, और जिस जैसे वो निकल गए थे वैकुंठ से, उल्टे पाव सीधा वैकुंठ पुनः आकर भगवान श्री हरि के पास पहुंच और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय। आप दया करो, आप कृपा करो, आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। बोले क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावहु कोई। वे कहते हैं मेरा मन उस विश्व मोहिनी के प्रति आकृष्ट हो गया है, आप कृपा करके अपना ये जो हरि वाला रूप है, हरण करने वाला, सबके चित्त को आकृष्ट करने वाला, आकर्षित करने वाला, सबके मनों को हरने वाला, ये हरि रूप आप हमें कृपा करके प्रदान करो। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका दास हूँ, जीवन भर आपकी सेवा करता रहा, क्या आज तक कभी मैंने आपसे कुछ मांगा है? पहली बार प्रभु आपसे कुछ मांग रहा हूँ, तो ऐसी दया करो प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मुझे आपका ये हरि रूप प्रदान करो, जिस रूप को ले जाके मैं उस स्त्री को मोहित कर सकूं और विश्व मोहिनी के साथ विवाह कर सकूं। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। तो मन ही मन भगवान हंसने लगे, देखो अब तक तो कुछ देर पहले ही कह रहा था माया को जीता, ये किया वो किया, अब एक कन्या को देख के ये कितना विकल हो रहा है। जय विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। वचन हमारा कभी मृषा नहीं हो सकता, कभी झूठा नहीं हो सकता, हे नारद मुनि। हाँ, परम हित नारद सुन तुम्हार, हे नारद मुनि, जिसमें आपका परम हित है, परम कल्याण है, मैं वही कार्य अवश्य करूंगा। तो नारद मुनि को तो ऐसे लग रहा था कि भगवान अपना हरि का मतलब सुंदर रूप प्रदान करेंगे, लेकिन भगवान ने ऐसा उनका रूप बना दिया, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। उनका शरीर इतना, स्वरूप इतना कुरूप बना दिया। यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, ऐसा विचित्र। संस्कृत में हरि शब्द का एक अर्थ बंदर भी होता है, भगवान ने उनको भालू बंदरों जैसा बना दिया था। तो इस प्रकार से वे वहां पर गए, रहा तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ, विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुक तेऊ। वहां पर दो रुद्र अनुचर, भगवान शंकर के दो दूत थे, जो नारद मुनि सीधा वहां पर जाके बैठ गए, बिना आईने में देखे सीधा जाकर बैठ गए। उनको तो विश्वास था कि भगवान हरि का रूप प्राप्त हुआ है, तो इस कन्या ने तो मेरे गले में हार डाला। तो जाकर वहां पर बैठे, तो उनके बगल में दो रुद्रानुचर बैठे थे, रुद्र के दो अनुचर बैठे थे,
और ये जानबूझकर नारद मुनि को पंपिंग कर रहे थे, नारद मुनि को जो है वो फुला रहे थे, उनकी बारंबार स्तुति कर रहे थे। देखो हे भैया सुनो, वो इसको कह रहा है, वो उसको कह रहा, इतना सुंदर पुरुष आपने देखा, हम तो फालतू में यहाँ पर आए हैं। मुझे तो लगता है विश्व मोहिनी इन्हीं के गले में हार डालेगी, इन्हीं के गले में माला डालेगी। तो इस प्रकार से नारद मुनि की स्तुति करते हुए बैठे थे और नारद मुनि का अहंकार और बढ़ता जा रहा, अभिमान और बढ़ता जा रहा। इस प्रकार से जैसे ही वो कन्या वहां पर आई वरमाला लेकर, जैसे नारद मुनि के सामने आई तो बड़ी दुखी हो गई। बड़ी दुखी हो गई कि अरे ऐसा ऐसा कुरूप व्यक्ति कौन आ सकता है, और इसको कैसे लगा होगा कि मैं इसके साथ विवाह करूंगी। तो इस प्रकार से वो कन्या जो है नारद मुनि को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हुए आगे निकल गई। नारद मुनि को लगा शायद ध्यान से इसने देखा नहीं होगा, तो नारद मुनि दूसरे क्रमांक से दूसरी तरफ से आके पुनः उसके सामने बैठ गए। तो ये कन्या बोली ये क्यों बंदर बार बार सामने आ रहा है। तो कन्या बड़ी दुखी हुई, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके वो वहां से निकल पड़ी। देखते ही देखते सारा साज समाज वहां पर बैठा है। उस राजमहल में मुख्य द्वार से एक बड़ा ही सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न एक राजकुमार आता है, और जैसे वो राजकुमार वहां पर प्रविष्ट होता है तो कन्या विश्व मोहिनी उसको देखकर मोहित होती है और उस माला को ले जाके उस बालक के, उस राजकुमार के गले में डालती। जैसे उस राजकुमार के गले में वो माया विश्व मोहिनी हार पहनाती है, नारद मुनि का स्वप्न चूर चूर हो जाता है। नारद मुनि बड़े रुष्ट हो जाते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं। ये कैसे संभव हुआ? भगवान श्री हरि तो संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति है, उनका रूप मैंने प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी ये स्त्री मुझसे आकृष्ट नहीं हुई, इसका क्या कारण है? तो इस प्रकार से जब नारद मुनि ने पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाहे। उन्होंने सबसे पहले तो देखा कि चलो जाकर देखता हूं मेरा रूप कैसे है। तो उन्होंने एक जल कुंड में अपना चेहरा देखा। जैसे ही चेहरा देखा तो एकदम क्रोधित हुए। फरकत अधर, होठ कांपने लगे, मन में एकदम कोप आया, भयंकर क्रोधित हुए और अपना रूप देखकर परेशान हो गए। बोले भगवान ने मुझे बंदर बनाया है, भगवान ने मुझे भालू जैसा, बंदर जैसा रूप प्रदान किया, वनचर जैसा रूप प्रदान किया है। और ये बगल में जो दोनों बैठे हुए थे ये मुझको बार बार कह रहे सुंदर हो सुंदर। वो दोनों खूब जम के हंस रहे थे जब नारद मुनि की ऐसी निंदा हुई। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया, हो निशाचर जाहि तुम, कपटी पापी दो, हसे हम ही सो फल, सो लेहु फल, बहुरे हसे मुनि को। इससे आगे जीवन में किसी मुनि की आप निंदा न करें या किसी मुनि का आप अपमान न करें, इसलिए मैं आपको श्राप दे रहा हूं, हे कपटी दोनों भाई, तुम दोनों निशाचर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। तो ये जो रुद्रानुचर थे, रुद्र के जो दो भक्त थे, ये रावण और कुंभकर्ण बन के आए नारद मुनि के उसी श्राप से। और वहां पर उनका मन भरा नहीं, वो सीधा कहाँ चले? फरकत अदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। जहां लक्ष्मीपति नारायण बैठे हैं वहां पर वो चले गए। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन करो तुम सोई, भले मंद मंदेव भल करहु, विस्मय हर्ष न किय कछु धरहु। वे कहते हैं कि आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे सुप्रीम अथॉरिटी कोई नहीं है, इसलिए आप जो है स्वतंत्र हो गए हो, आप पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए आजकल आप कपटी व्यवहार करने लग गए हो। असुर सुराभिषेक शंकर ही, आप रमा मणि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। आपने हमेशा कपट का व्यवहार किया है, सारे देवी देवता राक्षसों को उकसाकर मंदराचल का मंथानी बनाकर समुद्र मंथन करवाया, और जैसे ही उसमें से जहर निकला तो आपने क्या किया? विष शंकर ही, आपने वो जहर बेचारे भोले बाबा शंकर को पिलाया। और रमा मणि चारु, रमा के साथ कौस्तुभ मणि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अपने पास रखा। इसलिए आप संसार के सबसे ज्यादा कुटिल व्यक्ति हो, कपटी व्यक्ति हो, और ये कपट तो आजकल आपके व्यवहार में भी दिखाई दे रहा है प्रभु, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। बोले आपने सबसे पहले तो मुझे एक वो जो बालक राजकुमार के रूप में आया था उसका पीछा करते ही वो वहां पर गए तो राजकुमार ही कमलापति बन गए थे, वो साक्षात भगवान थे।
और उनके बगल में लक्ष्मी जी भी खड़ी थी और उनके बगल में विश्व मोहिनी कन्या भी खड़ी थी। तो भगवान को कहते हैं आप ही मनुष्य के रूप में आए थे ना, आप ही राजकुमार के रूप में आए थे, तो जाओ सबसे पहले तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य रूप में प्रकट होंगे, मानव रूप में, फिर आपको पता चलेगा ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या होता है, दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, मनुष्य जीवन में कितना कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन केवल सुख का पुतला नहीं होता, उसको अलग अलग प्रकार के दुख भी सहने पड़ते हैं। हाँ, और रही बात दुख की, तो आपने मुझे उस विश्व मोहिनी से जिसके प्रति मेरा मन आकृष्ट था, आपने मुझसे उसको दूर किया, उससे मुझे दूर किया, हम दोनों में वियोग किया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आपकी प्राण प्यारी जो महालक्ष्मी है, उससे भी आपका विच्छोह हो जाएगा। एक राक्षस आपकी पत्नी को भी चुरा कर ले जाएगा। ऐसा श्राप उन्होंने भगवान को दिया और कहते हैं मुझे वानर बनाया, मुझे बंदर का सा रूप प्रदान किया, मुझे भालू का सा रूप प्रदान किया, तो मैं आपको एक ये भी श्राप देता हूँ, जब आपको आपकी पत्नी की सहायता के लिए, आपको किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, तो इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना जो आपकी रहेगी, जहाँ के आप बड़े राजकुमार होंगे, वो कोई सेना आपके काम में नहीं आएगी। मेरे जैसे दिखने वाले भालू बंदर ही आपकी मदद करेंगे और उन्हीं की सहायता से आप अपने पत्नी को पुनः वापस प्राप्त कर पाओगे। तो क्रोध में भरकर जब नारद मुनि ने श्राप दिया, तो भगवान ने कुछ क्षणों के बाद उनकी माया को हर लिया। तब नारद मुनि पछतावा करने लगे, प्रभु ये मैंने कैसा आपको श्राप दे दिया, मैं आपके चरणों में दंडवत करता हूँ, मेरी वाणी मृषा हो जाए, झूठ हो जाए, आप कृपा करके मुझ पर दया कीजिए, कितना बड़ा अमोघ पातक मैंने किया है। तो भगवान ने कहा नारद मुनि चिंता न करो, ये मेरी ही विशेष लीला है, मेरा ये जो आने वाला अवतार है, उस अवतार का ये कारण बनेगा आपका विशेष श्राप। तो नारद मुनि के श्राप को सिद्ध करते हुए भगवान मनुष्य रूप में राम अवतार में प्रकट हुए और नारद मुनि के श्राप से उनका सीता जी के साथ विच्छोह हुआ और सीता जी के साथ विरह हुआ और भालू बंदरों की ही सहायता से उन्होंने रावण को परास्त किया और वो जो दो निशाचर थे वे दोनों ही रावण कुंभकर्ण बन के आए थे, जिनका उद्धार साक्षात भगवान रामचंद्र के हाथों से हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत कारण हैं जिन कारणों को लेकर भगवान राम जी के रूप में प्रकट हुए। रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सुंदर ये कथाएं आई हैं। भागवत में जहां पर किम पुरुष वर्ष का वर्णन है 5वें स्कंद में, वहां पर हनुमान जी अपने मित्रों से कहते हैं कि भगवान इस धरातल पे आते हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक बड़ा सुंदर कारण वहां पर हनुमान जी कहते हैं कि भगवान का अवतार केवल राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। इस संसार में केवल राक्षसों का वध करने के लिए भगवान नहीं आते, तो मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्य लोगों को कुछ सीख देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए भगवान आते हैं। हाँ, तो भगवान का एक नाटक होता है, एक लीला होती है, जो भगवान अपने मित्रों को, पार्षदों को, पत्नी को, स्त्री को, अपने सारे सखाओं को, सखियों को, माता पिता को, धाम को लेकर इस धरातल पर प्रकट होते हैं और आपके जैसे हमारे जैसे जो भक्त होते हैं, उनका उद्धार, उनका कल्याण करने के लिए ऐसी विविध विविध लीलाओं को करते हैं। ये लीलाओं को अपने भक्तों के माध्यम से लिखवाते हैं अलग अलग ग्रंथों में, जिसके श्रवण कीर्तन से ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान आते हैं तो कुछ सीख प्रदान करने के लिए आते हैं। संक्षिप्त में कहूं तो आप रामचंद्र जी के चरित्र में देख सकते हैं कि भगवान जब इस संसार को दिखा रहे थे कि आदर्श पुत्र क्या होता है, तो त्यक्त्वा सुदुष्टिज सुरेप्सितला राज्य लक्ष्मी, भागवत में कहा गया है कि ऐसी राज्य लक्ष्मी, दशरथ महाराज का राज्य इतना समृद्ध था, इतना ऐश्वर्यशाली था कि देवराज इंद्र को भी उसकी इच्छा, उसकी कामना थी, अरे राज्य हो तो अयोध्या जैसा राज्य होना चाहिए, स्वर्ग कोई राज्य है, हाँ ये इंद्रासन कोई आसन है। तो देवी देवताओं को भी जिस राज्य की लालसा थी, ऐसे राज्य को तृणवत त्याग करके केवल गुरुवर थे त्यक्त राज्य, अपने माता पिता की आज्ञा के कारण भगवान ने उस सारे राज्य को ठुकरा कर वनवास भगवान ने किया। वहां पर भगवान ने दिखाया कि आदर्श पुत्र क्या होता है। आगे चल के उन्होंने बताया, संस्कृत में पति शब्द का अर्थ होता है पाति, यह पाति सब पति जो पालन करे, अपने पत्नी की रक्षा करे, हर संकट से बचाए, उसको सही मायने में पति कहते हैं।
तो जब उनकी पत्नी का हरण हुआ रावण द्वारा, तो भालू बंदरों को साथ में लेके 100 योजन इतना लंबा चौड़ा पुल बना के रावण की लंका में घुस के उसकी सारी लंका को जला के सारे सैन्यों को हतबल करते हुए सारे परिवार के साथ उसको नष्ट करके अपने पत्नी का रक्षण करके राजा रामचंद्र ने दिखाया कि आदर्श पति क्या होते हैं। और इतने कष्ट से प्राप्त की गई सीता जब वे राजा के रूप में अभिषिक्त हुए, राजा बने, तो उन्होंने देखा कि राजा तो प्रधान सेवक होता है, प्रजा ही उसका अपना सच्चा परिवार होता है। तो प्रजा की असंतुष्टि देखकर एक धोबी कह रहा था अपनी पत्नी को डांटते हुए, क्या मुझे राम समझती हो? इतने महीनों तक रावण की सन्निधि में रह के आई सीता को उन्होंने स्वीकार किया, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। तो ऐसा सुनकर उन्होंने इतने कष्ट से प्राप्त की सीता रावण को मार के उस सीता का भी हंसते खेलते परित्याग किया, सीता महारानी का, ये दिखाने के लिए कि आदर्श राजा क्या होता है। तो राम जी का चरित्र बड़ा ही मर्यादा से युक्त है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राजा रामचंद्र जी हमको सिखाते हैं आदर्श पुत्र क्या होता है, आदर्श पति क्या होता है, आदर्श राजा क्या होता है। तो राम जी का चरित्र बड़ा ही आदर्श है। तो इसलिए हमें राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा अद्भुत आदर्श हमारे जीवन में भी प्रकट हो, ताकि ऐसा आदर्श जीवन व्यापन करते हुए हम भगवान श्री हरि की नित्य निरंतर सेवा करते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की इस कथा को मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ। कल रामनवमी है, तो हम लोग राम के जन्म की विशेष कथा को कहेंगे और इस 3 दिवसीय सत्र को राम की जन्म की लीला और यदि कुछ समय बचता है तो भगवान की कुछ बाल लीलाओं को करेंगे। वनवास आदि भगवान की लीलाएं थोड़ी सी हृदय को द्रवीभूत करने वाली, त्रस्त करने वाली कथाएं हैं। क्योंकि राम जी का प्रादुर्भाव है, रामनवमी है, तो हम राम जी की मधुराति मधुर जन्म लीला और बाल लीला को ही देखने का प्रयास करेंगे। उससे आगे की कथा अन्य कभी अवसर मिलने पर करेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। पद्ममाली प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान उद्धव प्रभु, आज के सत्र के लिए भी। प्रभु जी ने इतनी सुंदर लीला, या लीला में भी तत्व छुपा है, अगर हम सब इसे सही से समझ पाए, पकड़ पाए तो कई जगह पर आज भी रामनवमी मनाई जा रही है। खैर इस्कॉन में तो कल ही मना रहे हैं, लेकिन हर जगह, इस्कॉन के अलावा हर जगह आज ही रामनवमी है। तो आज भी प्रभु श्री रामचंद्र का दिव्य आविर्भाव दिवस है। ऐसी चेतना बनाने में या रखने में कोई नुकसान तो है नहीं। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि आज रामनवमी के दिन भी प्रभु जी का हमें संग मिला और प्रभु जी ने हमें राम कॉन्शियस किया, प्रभु श्री रामचंद्र के विषय में श्रवण करवा के। तो आइए परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान उद्धव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री रामचंद्र आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय, श्री राम नवमी महा महोत्सव की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। और जैसे गुरु महाराज कहते हैं, रामनवमी केवल रामनवमी नहीं, लेकिन रामनवमी, लक्ष्मण नवमी, भरत नवमी और शत्रुघ्न नवमी महोत्सव की जय। श्री अयोध्या धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी। श्रीमान उद्धव प्रभु की जय। हरे कृष्ण।